Hello guys, welcome to the civil engineering study. Today we are going to discuss about railway engineering. In this context, we should discuss about modes of transport and Indian railways, and we should talk about some introduction of these parts. First of all, we should talk about transportation engineering. Transportation engineering basically deals with transportation of goods and passengers and transportation of different kind of things. It will be anything. Like first of all we should discuss about basic modes of transport. इसके बेसिक मोड्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसका बेसिक मोड्स लैंड, वाटर, एयर एंड लैंड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट। आप जानते हैं ज़मीन पर दो ही तरह के ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हैं, एक तो रेल ट्रांसपोर्ट और दूसरा है रोड ट्रांसपोर्ट। Now, water and air. Water and air transport, as you all know, water consists of shipping, boating, this kind of things. And air transport, air में aeroplane हो गए अपने, aeroplanes and air jets and all these things. Now we should move next. Road transport. We should discuss about road transport. There are different forms of roads, as you have seen expressways, highways, city streets, rural roads. You have seen expressway. The work of Delhi Mumbai expressway work is going on. Delhi Meerut expressway was recently opened. आपको सभी को पता है कि ये दिल्ली और मेरठ का एक्सप्रेसवे भी थोड़े दिन पहले ओपन हुआ था। एंड इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रोड, इसमें ये होता है कि अपन को बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स और पेडेस्ट्रियंस इस पे जा सकते हैं। लाइक इट इज़ फॉर पर्सनल यूज़, it majorly consists of personal use, and it will provide greater utility in transport. When it will provide greater utility in transport, think about it. We will discuss at the end of the video when it will provide greater utility in transport. As shown in the figure, this is the expressway. This is Dwarka expressway, Delhi Dwarka expressway. Some of you guys have seen it. दिस इज़ नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे है, आप सभी ने देखा होगा NH, नेशनल हाईवे NH से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और नेशनल हाईवे के बीच में एक डिवाइडर है एंड बाकी ये नेशनल हाईवेज़ का रोड है। एंड दिस इज़ द स्ट्रीट, सिटी स्ट्रीट्स, लाइक सिटी स्ट्रीट्स लाइक सिटी रोड्स। आपने देखा होगा दिल्ली में जितने भी रोड है, दिस इज़ द व्यू ऑफ दिल्ली नियर राजघाट, नियर राजघाट रोड। आई थिंक देर इज़ द व्यू ऑफ दैट। आपने देखा होगा इतना कंजस्टेड रहता है दिल्ली में। एज शोन द फिगर, दिस इज़ व्यू ऑफ दिल्ली एंड दिस इज़ द रूरल रोड। ऑफ कोर्स it is very narrow and it is not well maintained, and you have seen no dividers. There is no dividers at all, like as seen in the figure in street and national highways. There is a divider between these from coming and going sides. ओके, बीच में एक डिवाइडर ज़रूर रहता है, लेकिन रूरल रोड्स में क्या होता है, ऐसा कोई भी डिवाइडर नहीं रहता। आने और जाने वालों के लिए एक ही रोड रहता है। चलो अपन आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अपन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए कब, अपन एक क्वेश्चन की बात की थी, कब सबसे ज़्यादा ये यूटिलाइज हो सकता है। ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट्स के लिए आप सोच के देखो कैसा ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज सबसे ज़्यादा करेगा, जो सबसे लाइक छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा या फिर बीच का। द आंसर इज़ जो छोटा और बीच का होगा, मीडियम हॉल मतलब होता है वजन उठाना, जो छोटा और मीडियम साइज वेट्स उठा सके। लाइक पैसेंजर्स तो इतना वजन रखते नहीं हैं, तो इसी वजह से पैसेंजर्स के लिए लाइक हैवी व्हीकल्स की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक कार हो गया, बाइक्स होगी, दीज आर सुटेबल फॉर पैसेंजर्स। But for goods transport, we should need a long hauls, means long load carrying capacity vehicles, that will be contain lesser volume, and like it will be made of lesser volume, like trucks. Truck is not made of so much of weight, but it contains a large space. You have seen that the side walls of the truck made of tin. It is not much that strong. It has not much एज डेंसिटी एज कार्स। द मीनिंग इज़ उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, लाइक मटेरियल की डेंसिटी उसमें जो यूज़ होती है।
कहने का मतलब है आप लोग को अगर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप ऐसा व्हीकल चूज़ करोगे जिसमें कम वेट हो और जो ज़्यादा लंबा हो और जो ज़्यादा सामान लोड कर सके, तो अपने लिए इकोनॉमिकल होता है. ओके, so as seen in the figure, this is the road transport, the goods transport, a truck. This is carrying a car, and this is, so we now talk about railways. रेलवेज जो है ना इंडिया की, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी गई रेलवेज है. लेट अस डिस्कस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज. We are not comparing with other countries, but for India it is very economical. As you guys all know, the railway of our country, India, is making a huge amount of profit. It made surplus amount of profit. आपने देखा ही होगा, अभी तो खैर प्राइवेटाइजेशन हो गया है रेलवे का कुछ पार्ट का, बट इससे पहले लाइक 2-3 ईयर्स के पहले रेलवे के अंदर वैकेंसीज एंड लाइक एवरीथिंग वाज इन लाइक प्रॉफिट. अपन को रेलवे से बहुत फ़ायदा होता है इंडिया के अंदर. लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन विद रेलवेज. ओके, कम टू अवर टॉपिक. ट्रांसपोर्टेशन फॉर लार्ज वॉल्यूम. आप ट्रांसपोर्टेशन फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ हैवी एंड बल्की कमोडिटीज़ ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स अगर आपको कोई भारी और बल्की चीज़ लार्ज वॉल्यूम की है कोई भी, इसको ट्रांसपोर्ट करना है और वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करना है, इट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल. रेलवेज जो होती हैं वो पूरे इंडिया में फैली हुई हैं, जगह जगह पे इनका रूट है, तो ये इकोनॉमिकल रहेगा कि अपन किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए रेलवे को प्रेफर करें. किसी भी चीज़ के लिए, इट मे बी पैसेंजर, इट मे बी कमोडिटीज़ और इट मे बी गुड्स. ओके, सेफ्टी इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है अपना सेफ्टी का रहता है और कंफर्ट का रहता है. आपको पता ही है कार छोटी सी होती है, उसमें आप कंफर्ट इतना नहीं रह पाते, बट इट मे बी unsafe because of car accident. We should aware that a driver must be always has a eyes on roads. If something happens, there is a disastrous moment for all of the family members. तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन कुछ लोग ट्रेन को भी प्रेफर करते हैं सेफ्टी के मामले में. ओके, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट देखते हैं अपन. तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इसकी यूनिट लोड थ्रू यूनिट डिस्टेंस इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दैट रिक्वायर्ड बाय रोड. इट मीन्स दैट कि अगर रोड पे जितना पेट्रोल एक यूनिट डिस्टेंस और यूनिट लोड को ट्रैवल करने में लग रहा है, उतना ही अगर रेलवे से कंपेयर किया जाए यूनिट लोड और यूनिट डिस्टेंस, मतलब कि एक यूनिट लोड और एक यूनिट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो रेलवे को जो फ्यूल लग रहा है वो बहुत ही कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू रोड, और वो भी बहुत ही छोटा फ्रैक्शन होता है उसका. ओके, ट्रांसपोर्टेशन, यू ऑल नो द टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम. सो आपको पता ही है, अगर इफ़ वी हैव टाइम, सो इफ़ वी हैव टाइम वी हैव एवरीथिंग. सो लेट अस टॉक अबाउट विद टाइम एस्पेक्ट. एयर ट्रांसपोर्ट. आपको पता है सबसे जल्दी आप कहीं भी जाना हो तो आप क्या चीज़ लेते हो. मान लीजिए आपकी मीटिंग है कहीं पे, आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, तो आप एयर ट्रांसपोर्ट को लेंगे. ओके, it will take very minimum time as compared to all those transports which are available. Okay, and it has maximum utility. It means it has very much time saving. Time is the money, you all know. So with the utility of time is very high. And like water transport, let us talk about water transport. It is the exact opposite to the air transport. Water transport means provide the facilities like for transporting commodities of heavy and bulky kind of things, and it will when time is not in the much of use. मतलब आपको कोई भारी और बहुत ही बल्कि चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है किसी और जगह पे, और आपके लिए टाइम इतना मायने रखता नहीं है, तो उस केस में अपन वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं. लाइक हर केस में ऐसा होता नहीं है, बट कुछ केस होते हैं लाइक अपने इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट पे चलता है. कोई भी अपन को गुड्स या कोई भी अपन को रॉ मटेरियल कहीं से ट्रांसपोर्ट करना है, किसी और कंट्री से ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो सारा ट्रांसपोर्टेशन वाटर के थ्रू होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है. इसमें सबसे कम एनर्जी लगती है किसी यूनिट लोड को यूनिट डिस्टेंस में चलाने के लिए. लाइक इसमें जो एनर्जी लगती है वो रेलवेज से भी कम लगती है. मैंने आपको बताया था रेलवेज़ की रोड से कम लगती है
और वाटर की और जो शिप की जो एनर्जी लगती है एक यूनिट और एक यूनिट लोड और एक यूनिट डिस्टेंस को हॉल करने में, उसको ले जाने में, वो और भी कम एनर्जी देता है। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मोड होता है। Okay guys, let us discuss about some differences between the land transports, two land modes of transport, like we have discussed about roads and rails. Okay, we should compare with this table I have shown, like uh, with the table you can compare all those things. Like we have in the first column we have contained the features of the transport, land transports, and in the second column the consist of rail transport, and third road transport. We should compare both these in this column. ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ट्रैक जो है आपका रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है आपकी मूवमेंट में। लाइक रेल में जो ट्रैक जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस उधर फ्रिक्शन बहुत कम होती है। आपने देखा होगा रेल की जो पटरियाँ होती हैं और रेल के जो पहिए होते हैं, द व्हील्स ऑफ रेल, दे आर बोथ मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो दोनों एक ही चीज़ के बने हुए होते हैं। तो उन दोनों में जब सेम मटेरियल किसी सेम मटेरियल के ऊपर चल रहा है तो फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, और उनके जो पहिए और जो पटरियाँ होती हैं उनकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत ही स्मूथ होते हैं। ओके, अब रोड की बात करते हैं। रोड पे होता है टायर और नीचे होती है डांबर की सड़क। ओके, डांबर चारकोल टाइप ऑफ सड़क। तो टायर जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन में एनर्जी लूज़ करता है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। तो रोड के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अवर इज राइट ऑफ वे। इट राइट ऑफ वे मीन्स इट व्हाट काइंड ऑफ वे इट शुड यूज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट। लाइक इट हैज़, मतलब रेल को तो एक डिज़ायरेबल एक ट्रैक चाहिए, मतलब उसको रेल अब कहीं भी दौड़ नहीं सकती, उसको एक डेजिग्नेटेड ट्रैक चाहिए होता है दौड़ने के लिए। और अपन ट्रैक के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स होते हैं। ओके, रोड पे, रोड तो कहीं पे भी, कार को तो अपन कहीं पे भी चला सकते हैं, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है उसको, कार को तो, समझ रहे हो आप, मतलब कार को कहीं पे भी और कोई भी यूज़ कर सकता है। उसको आप चला सकते हो, मैं चला सकता हूँ अगर चलानी आती है तो। और रोड, रोड तो हर जगह है, पूरा प्लेन एरिया है, आप कहीं पर भी उसको ट्रैवल कर सकते हो। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट इज हायर, okay, and the cost of road transport, it will be lesser. Why it is so? Because the cost consists of maintenance of rail, it is bigger. It consists of large number of bogies, large number of passengers, large number of, it consists of heavy kind of things, so its maintenance and cost is all over high. And in road it contains cost is very low. Okay, and we should talk about gradient and curve. Gradient and curve. We should discuss about gradient of rail. As we all know, rail is a joint network. Like रेल जो है बोगी से जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। तो अगर हम उसमें स्टीप एकदम एकदम तिरछा अगर स्लोप दे देंगे तो रेल की जो बोगीज होती हैं उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए अपन जो कर्व होता है और जो ग्रेडियंट होता है उसको एकदम मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। अब रोड पे तो अपन कितना भी स्लोप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि कार होती है और कार बहुत छोटी होती है ना, बाइक होती है, बाइक बहुत छोटी होती है, तो अपन कितना भी शार्प कर दें उसको ग्रेडियंट को, या कितना भी मतलब स्टीप कर दें स्लोप को, उससे अपन ये एक फ़ायदा होता है अपने रोड ट्रांसपोर्ट का। अपन बात करते हैं सूटेबिलिटी, मतलब किस टाइप की चीज़ों को ये सूटेबल होता है, किस टाइप की चीज़ों को ये फ़ायदेमंद होता है, ये सही लगता है। लाइक रेल ट्रांसपोर्ट होता है, या आप हैवी लोड्स के लिए और जो लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। बट एज अपोजिट रोड्स में लाइटर गुड्स होते हैं, जैसे आप गाड़ी में कोई भारी सामान हो सकता है उसको तो ट्रैवल कर नहीं सकते। लाइक आपको आपकी कुछ भी भारी सामान ट्रैवल कराना है तो आप लाइटर गुड्स ट्रैवल कर सकते हो, और कुछ पैसेंजर से जा सकते हैं कार बाइक में गिने चुने। तो ये थोड़ा सा एक अंतर है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, जो रेल होती है वो फिक्स होती है डेजिग्नेटेड पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट्स तक, मतलब उसकी मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होती है। ओके, तो इट मीन्स कि इट हैज़ फिक्स टाइम टू कम ऑन स्टेशन, मतलब है इसका मतलब ये है सिंपली कि जो रेल होती है वो अपने स्टेशन पे अराइवल और स्टेशन से डिपार्चर एक डेस्टिनेशन पॉइंट पर उसका फिक्स होता है।
लाइक डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया अपना स्टेशन, और उसका अराइवल और डिपार्चर टाइम फिक्स होता है बिकॉज ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, है ना। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है। आप बाइक है, आपके पास कार है, खुद की कार है, तो उसमें आप डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, सो वी शुड डिस्कस अबाउट द पॉल्यूशन, द रेल ट्रांसपोर्ट। रेल की वजह से सबसे कम पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि रेलवे जो होती है वो लाइक इलेक्ट्रिक रेलवेज आ गई आजकल। तो पहले डीजल की रेलवेज होती थी, है ना, उससे पहले कोल की होती थी। बट आजकल जो है ना कि इलेक्ट्रिक रेलवेज बहुत ही कम पॉल्यूशन, मतलब मिनिमम जनरेट ही नहीं करती हैं। बट रोड में अभी भी वही अपना डीजल पेट्रोल वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, सो दिस इज़ आवर टेबल। You should write down. If it is missed, don't worry, I will upload in the PDF form in my description box. Okay, development of railways. Let us see the development. How will the railways and how was the railways developed during the period of time? Okay, so now discuss. Uh, so first of all, we should discuss in abroad. The first of all, Nicholas Carnot. निकोलस कार्नोट साहब एक साइंटिस्ट थे। 1769 में इन्होंने एक स्टीम इंजन डेवलप किया। स्टीम इंजन मतलब जो भाप से जो इंजन चलता है, इन्होंने ऐसा इंजन डेवलप किया पहली बार। ओके, आपको पता है ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ये टाइम जो था ना, इसमें स्टीम इंजन बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ सर, जो रिचर्ड त्रिवेटिक जो साहब थे, अपने साइंटिस्ट थे, 1804 में इन्होंने इसी इंजन का यूज़ करते हुए एक स्टीम लोकोमोटिव बना दिया। मतलब लोकोमोटिव किसे बोलते हैं, इंजन। ओके, स्टीम लोकोमोटिव बना दिया, स्टीम से चलने वाला इंजन बना दिया। ओके, इन्होंने इसी का यूज़ आगे किया। अब आगे क्या हुआ सर, देखते हैं। आगे हुआ ये कि जो जॉर्ज स्टेफनसन सर थे 1814 में, उन्होंने फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन बनाए जो कि रेलवेज के ऊपर दौड़े। ओके, रेलवेज के ऊपर दौड़े। जिस फिगर में जैसे आपको दिख रहा है, ऐसा स्टीम इंजन उन्होंने बनाया था, और ऐसा फर्स्ट मॉडल था रेलवेज के स्टीम इंजन का। तो 1814 में सर पहली बार रेलवेज का इंजन बना, वो भी स्टीम से चलने वाला। ओके, अब क्या हुआ, आपको नॉलेज, आप उन्हें पता लग गया था रेलवे डिस्कवर हो गई थी। अब क्या हुआ, अब पब्लिक के लिए जो रेलवे ओपन की गई ना, वो 27 सितंबर 1825 में पहली बार ओपन की गई थी यूके के अंदर, स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। यूके में एक जगह है स्टॉकटन और डार्लिंगटन। अब आपने इंजन तो बना लिया, अब उसका यूज़ क्या है, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब उन्होंने जो पहली बार खोला वो 27 सितंबर 1825 को खोला गया। अब ये धीरे धीरे और कंट्रीज़ में भी फैलने लगा, जैसे कि यूरोप, यूएसए, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उस टाइम पे, उनमें फैल गया था। लाइक उनके रेलवे सिस्टम्स डेवलप हो गए थे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप कर ली थी टाइम के साथ। ओके, एंड इंडिया के अंदर क्या सीन था, अपन देखते हैं। इंडिया जो है ना, इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे 19 और 20th सेंचुरी में रहा है। इवन 17th सेंचुरी का हाफ भी था, बट जो डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज है ना इंडिया का, वो मिड ऑफ द 19th सेंचुरी से रहा है। लाइक 1830 से 1850s के बीच में इन्होंने आइडिया लाया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करा जाए इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत स्लो था। बैलगाड़ी थी, कारें भी वो पुराने मॉडल्स की कारें थी, ऐसे आज के ज़माने की थोड़ी बहुत पुराने। तो इससे ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्लो हो रहा था। अब क्या हुआ, उन्होंने ट्रायल्स कंडक्ट कराए इस टाइम पीरियड में, 30 और 50 के बीच में, 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में। उन्होंने बहुत सारे सर्वेज और ट्रायल कंस्ट्रक्ट कराए, उन्होंने कंस्ट्रक्शंस बिगेन कर दिए रेलवे लाइंस का। ओके, एंड फिर इसका फ़ायदा हमें कहाँ मिला, इसका फ़ायदा हमें मिला 1850 और 1870s में, जब पूरी आल कुछ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, तो रेलवेज़ को ओपन किया गया पैसेंजर्स के लिए, मतलब अलग अलग जगह पे। तो जो पहली कमर्शियल ट्रेन जर्नी थी ना सर इंडिया के अंदर, वो बॉम्बे से थाने तक की थी। वो ओपन हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, और ये सिर्फ 34 किलोमीटर्स की लाइन थी। तो 34 किलोमीटर की पहली बार इंडिया के अंदर बॉम्बे से थाने में रेल चली थी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ 8 कंपनीज। you can see the 8 companies is like the first 8 divisions of India.
if you research some more guys about Indian Railways and history of Indian Railways, you can visit the Indian Railway website, government website. It is a government verified website. Okay, you can just type Indian Railways .gov.in, and in that section you can come to the history of railways, and आपको पूरा अच्छे से पता लग जाएगा कि रेलवेज के बारे में क्या है क्या नहीं है, आपको पूरी अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे हाँ, अपन देखते हैं 1870s और 1900 के बीच में क्या हुआ। अब जो है सर, इंडिया के अंदर रेलवेज तो आ गई, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस लाइक नैरो गेज लाइन, वाइड गेज लाइन, मीटर गेज लाइन, ये डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मीटर गेज और नैरो गेज डेवलप हुई थी, उसके अंदर टॉयलेट्स और जो थर्ड क्लास के जो कोचेस थे उसमें टॉयलेट्स भी इंस्टॉल कर दिए गए थे। पहले क्या होता था, रेलवेज तो होती थी बट टॉयलेट वॉयलेट कुछ नहीं होते थे उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर थर्ड क्लास के जो कोच होते थे उसमें टॉयलेट भी इंस्टॉल कर दिए। इतना डेवलप कर गया था। फॉर्मेशन ऑफ अदर रेलवेज कंपनीज, मतलब और कंपनीज का फॉर्मेशन हो गया। कंपनीज आज के टाइम पे डिवीजन है, पहले क्या कंपनीज नाम रख दिया था इनका। जैसे अपने कितने डिवीजन है रेलवे के, 17 है, प्लस एक बढ़ गया था 18 हो गए। ओके, 1905 में सर रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ इंडिया का, ये ब्रिटिशर्स के अंडर आती थी अभी भी। ओके, 1920 और 1930 में रेलवे फाइनेंस जो था वो जनरल फाइनेंस से अलग कर दिया गया। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया का जो बजट पेश होता था ना, एनुअल बजट, वो रेलवेज के लिए बिल्कुल अलग बजट पेश होता था इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले क्या होता था, बीच में एक कर दिया था इनको, बट इनको बाद में सेपरेट कर दिया गया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशूज़। अब अभी इसका करंट स्टेटस क्या है, ये अपन आगे की लेक्चर्स में देखेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट हो गया 1920 और 1930s में। ओके, एंड आफ्टर दैट 1930s में रेलवे की जो स्ट्रेच, रेलवे कितना फैल गया इंडिया के अंदर, 66,300, 66,300 रूट किलोमीटर। सर ये रूट किलोमीटर मैंने हाईलाइट जानबूझ के किया है, क्योंकि जो रूट किलोमीटर जो टर्म है ना, रूट किलोमीटर टर्म आपको आगे पढ़ाऊंगा, व्हाट इज़ रूट किलोमीटर एंड व्हाट इज़ पाथ, these are some different terms. Okay, 1936 में AC इंट्रोड्यूस किया गया पैसेंजर कोचेज में। पैसेंजर कोचेज में AC पहली बार आया था 1936 में। ओके, एंड 1937 बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा म्यांमार का पहले का नाम था, जो आज के टाइम में म्यांमार है ना, असम और मिजोरम की तरफ, उसका नाम पहले बर्मा था। तो बर्मा जब इंडिया से अलग हुआ 1937 में, तो 3200 किलोमीटर की रेलवे लाइन्स भारत से ले ली गई, क्योंकि वो भी पहले इंडिया का ही पार्ट था ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो अब 66 को माइनस कर लो 32 से, इतनी अपने पास रेलवे लाइन बच गई थी। और जो रेलवे लाइन्स और एसेट्स थे 1947 में वो भी डिवाइडेड हो गए थे। 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी एसेट्स थे, लाइक रेलवे लाइन्स, नंबर ऑफ रेलवे कोचेज, वागन्स, एवरीथिंग, सबको डिवाइड कर लिया था अपन ने, और पॉपुलेशन एंड अदर क्राइटेरियाज के हिसाब से। ओके, इन इंडिया 1950 और 1960s के बीच में बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। अपन ने रीग्रुपिंग ऑफ रेलवे स्टार्ट कर दी सर, रीग्रुपिंग ऑफ रेलवेज। एंड सबसे पहले अपने 6 जोन बने थे रेलवेज के, फॉर्मेशन ऑफ 6 जोन्स। ओके, 6 जोन्स एंड सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स। अपन एक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की सबसे पहले। प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर, ऑल्सो कॉल्ड एज RTRC, अपने RTRC सुना होगा। एंड बाद में इसको नाम दे दिया गया RDSO। ओके, वेरियस रेलवेज इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए गए, और बहुत सारे रेलवे इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर डेवलप किए गए। ओके, और जो सोने के लिए स्लीपिंग अकोमोडेशन इंट्रोड्यूस किया गया कोचेज़ में। आपको पता है पहले जो रेलवेज़ की सीट होती थी ना, उसमें सोने के लिए जगह नहीं होती थी। I mean, कहने का मतलब सिटिंग सीट्स होती थी। ओके, तो स्लीपिंग अकोमोडेशन करे गए। RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये इंट्रोड्यूस की गई। ओके, एंड आफ्टर दैट 1969 में दिल्ली और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, ये वाली ट्रेन चलाई गई 1969 में पहली बार, दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। ओके, फुल AC ट्रेन होती है सर ये। 1970s में कोलकाता मेट्रो कंस्ट्रक्शन भी हुई। सर ये एक की पॉइंट है सर, इसको लिख लेना, हाईलाइट कर लेना आप लोग, कि यहाँ पे जो कोलकाता की जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन थी ना, कोलकाता अभी भी एट प्रेजेंट भी ये इंडियन रेलवेज के अंडर आती है, ना कि मेट्रो के अंदर। कोलकाता मेट्रो, ओके, ये एक जोन भी है, आपको एक अलग से जोन भी है, आपको पढ़ाऊँगा आगे।
ये अलग से जोन भी है, इसको हाईलाइट कर लेना सर, आपके नोट्स बना या कहीं भी लिखो, क्वेश्चन आ जाता है। अब फॉर्मेशन मतलब 1970s में क्या क्या फॉर्म हुआ, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, मतलब इट्स लाइक RTES, रेल इंडिया, इरकॉन, इरकॉन ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। सर ये जो कुछ सर्विसेज एंड कंपनीज होती है ना, ये इस टाइम पीरियड में फॉर्म हुई थी। आपको पता होगा अभी 2018 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज ने वैकेंसी बंद कर दी है। ओके, अभी आने वाले टाइम में रेलवेज दोबारा से वैकेंसी निकालेगा, और वो वैकेंसीज जो होंगी सर, वो लाइक मैनेजमेंट की वैकेंसीज होंगी। अभी भी निकाल रहा है बट SSC के थ्रू निकाल रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम, सो ऑलवेज बी अवेयर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट स्लीपर्स, सर कंक्रीट स्लीपर्स का इंट्रोडक्शन आ गया था, मतलब कंक्रीट स्लीपर्स डेवलप हो चुके थे 1970s में। ओके, 1980s में क्या हुआ, कोलकाता मेट्रो जो थी ना वो चालू हो गई थी। अपन ने देखा कि 1970s में उसका कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ और 1980s में वो स्टार्ट भी होगी। 10 साल के टाइम पीरियड में वो कंप्लीट कर दी उन्होंने। इंडियन रेलवेज के अंडर आया था इसका ऑपरेशन। ओके, एंड अब इसमें देखिए कंप्यूटराइज पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। आपने देखा होगा पहले जो रिजर्वेशन होते थे, वो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 80s के टाइम की। उस टाइम पे अपन को जाना पड़ता था रेलवे स्टेशन पे, लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन वेबसाइट खोली IRCTC की या ऑनलाइन बुक किया रिजर्वेशन, फटाक से हो जाता है। लेकिन पहले की बात सर, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम इस टाइम पे डेवलप हुआ। और शताब्दी एक्सप्रेस, अपन ने शताब्दी नाम से एक ट्रेन आपने सुना होगा, न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में चलाई है इस टाइम में। एंड कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकोर, आपने बहुत बार सुना होगा कॉनकोर। ये एक प्राइवेट इंडियन लिमिटेड कंपनी थी जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1980s में। सर ये कई बार जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, कब हुई थी। और ये एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन रेलवे कहाँ पे चली थी, बहुत बार आ चुका है सर ये क्वेश्चन, बॉम्बे टू थाने, बहुत जनरल एग्जाम्स में आता है। ओके, इन इंडिया 1990 से आज की डेट तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, ये अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। IRCTC, आप लोग को पता है IRCTC एक वेबसाइट है जो कि टिकटिंग और जो भी टिकट के फाइनेंस को मैनेज करता है। आपको पता है SMS से आज में टिकट हो जाता है, इतनी अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है टिकट के मामले में, लेकिन स्टिल इट रिक्वायर सम एडिशनल इम्प्रूवमेंट। ओके, इंडिया के अंदर आज के टाइम तक 18 जोन्स है। मैंने आपको बताया था ना 18, ये 18 मैंने 17+1 बोला था आपको, +1 इसलिए बोला था क्योंकि जो कोलकाता मेट्रो है ना, ये कोलकाता मेट्रो ये भी इसके अंदर जोन्स के अंदर आती है। ओके, और डिविजन्स कितने आपने टोटल 70। ओके, रेलवे विजन 2020, ओके, नो सेपरेट रेल बजट। आज के टाइम में क्या हुआ, रेलवे 2020 से लेकर के रेल का जो बजट होता है ना, इसका सेपरेट रेल बजट नहीं आता, इसको कंबाइन कर दिया जनरल। मैंने पहले बोला था आपको, जब देश आज़ाद हुआ था उसके पहले, तो उस टाइम पे अपना बजट अलग हो गया था रेलवे का, और फाइनेंस बजट अलग हो गया था। बट अब क्या कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, फिर से मर्ज कर दिया सर। ओके, और क्या हुआ है सर डेवलपमेंट, जन शताब्दी, शताब्दी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, आपने सब देखी होंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन 20, प्राइवेटाइजेशन। ट्रेन 20, ट्रेन 18 क्या है सर, इसके बारे में मैं आपको बताएंगे। सबसे पहले अभी आप नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी 15 अगस्त को, अभी दो दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि 100,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवेज और कंस्ट्रक्शन बिगिन करेंगे। ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट होने वाली है रेलवेज़ की आने वाले टाइम में। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, आपको पता है ये प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है, मतलब ठेका दे दिया जाता है प्राइवेट कंपनीज़ को फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मेक इन इंडिया, सर मेक इन इंडिया जो टाइम था ना रेलवेज़ के लिए, रेलवेज़ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सर मेक इन इंडिया में। आपको बताता हूँ कैसे, जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज़ बताते हैं। जो इंडियन रेलवेज़ है ना, ये आपको पता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज, यू ऑल नो, cities like urban, rural and suburban areas, like urban is completely cities and suburban like it is like town type of areas. Okay, but it may be densely, मतलब densely होना चाहिए, populated बहुत ज़्यादा होना चाहिए,
तो उस टाइप की जगह के लिए जो रेलवेज़ होता है ना, सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि उस उधर इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड, जैसे आप एग्जांपल ले लो दिल्ली जैसी सिटी। दिल्ली जैसी सिटी में ना मेट्रो आ गई खैर अब तो, बट लेकिन रेलवेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिल्ली जैसी सिटीज़ के अंदर। लोकल ट्रेन्स भी चलती हैं, आपको पता होगा, दिल्ली मुंबई के अंदर तो अभी भी चलती हैं, मेट्रो तो बहुत ही कम है उधर। एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको अब इसका बताते हैं चलो। पार्ट ऑफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पार्ट है, फाइनेंशियल बैकिंग देता है वो इंडियन रेलवेज़ को। इसका कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी पैसे की ज़रूरत होती है ना, वो कहीं हद तक रेलवेज कंप्लीट कर देता है, मतलब बहुत प्रॉफिट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये। अब आप समझ गए होंगे। और इसने एक तरह से सेल्फ रिलायंट बनाया है इंडिया को, मतलब इस सेक्टर में, पर्टिकुलर रेलवे के सेक्टर में इंडिया को बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनाया है। मेक इन इंडिया में इसलिए मैं बोल रहा था बहुत ज़्यादा योगदान है इंडियन रेलवेज़ का। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। सर आपको एक और चीज़ बता दें कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर जो हैशटैग डाला है ना, सिर्फ नंबर है, इसका मतलब नंबर होता है, नंबर ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड। मतलब इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर एम्प्लॉयड है, मतलब इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं, बहुत। सर इसकी मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कह सकते हो आप इसको इंडिया के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ के मामले में इंडियन रेलवेज रखता है। ओके, वीकनेस डिस्कस करते हैं अपन इंडियन रेलवेज की। ओवर एज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा होगा, अब तो खैर चेंज कर दिए मैक्सिमम जगह पे, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे ओवर एज्ड, मतलब बहुत ही एज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लाइक आपने देखा होगा अभी भी कई जगह पे लकड़ी के जो होते हैं, अब तो चेंज कर दिए, बहुत सारी जगह पे चेंज कर दिए, बट इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, कई बार एज्ड हो जाता है अभी भी। लाइक राजस्थान के कुछ एरियाज़ में एंड बिहार साइड, इस जगह पे अभी भी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला रेलवेज़ है, तो उसको अभी रिप्लेस नहीं किया गया। ओल्ड टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी अभी इम्प्रूव नहीं है पूरी तरह, लाइक पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई नहीं हुआ है, कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रीफाई कर दिया इन्होंने, बट अभी भी काफ़ी पीछे हैं अपन टेक्नोलॉजी के मामले में। लाइक जापान जैसी कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्रीज अपन से कहीं गुना आ गए फॉर इन रेलवेज़। जापान में तो सर बहुत ही एडवांस ट्रेन चलती है, मैगलेव ट्रेन चलती है, मैग्नेटिक लेविएशन से। उनको तो ज़रूरत ही नहीं है डीजल पेट्रोल की, वो तो मैग्नेट से ट्रेन चलाते हैं सर। लार्ज फोर्स ऑफ अनस्किल्ड मैन पावर, कहने इसमें है कि बहुत सारे अनस्किल्ड मैन पावर अपने पास। लाइक अपन ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। अगर उनका प्रॉपर स्किल्स का यूज़ किया जाए, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो ये इम्प्रूव हो सकती है। मतलब वर्केबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है, इसमें सर्विस इम्प्रूव हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ सकती है, ये है। ओके, resource constraint rationalization to tariff for long period of time, uh, and pilferage and vandalism, Tejas Express, corruption, lot of bureaucracy। इन पॉइंट्स का मतलब है करप्शन का, आप समझ ही रहे होंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर होता है किसी भी सरकारी काम का, आपको पता ही है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली करप्शन तो होता ही है। और कॉम्पिटिटर भी नहीं है, इसकी वजह से कॉम्पिटिटर अगर नहीं होगा मार्केट में तो डेवलप नहीं करना चाहिए चीज़। मतलब जब कॉम्पिटिटर होता है तो अपन ऑब्वियसली किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो इससे कंज्यूमर ओरिएंटेशन, फेस सेफ्टी और रिलायबिलिटी कस्टमर्स की एक तरह से कहीं पे लैग करती है, तो इसी ये डिमेरिट है इसका सबसे बड़ा। तेजस एक्सप्रेस, आपने तेजस एक्सप्रेस का ट्रेन नाम सुना होगा, ट्रेन जो है अपनी तेजस ट्रेन, उसमें पिलफेरेज एंड वैंडलिज्म है। ओके, रैशनलाइजेशन है, मतलब टैरिफ्स का कंस्ट्रेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, these kind of things, it may be the weakness of Indian Railways. Okay guys, this is our today's lecture. Please like, comment, share and subscribe. Thank you guys, and if you have any issues please comment in comment box section. If you have any query, I have also checked my description email, you can mail me there. We also have some question and answer sessions later on, and thank you guys.